A very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. All right. So, welcome to another day of technical interview preparation, all of you. Today is day two, and today we'll be talking on the SSDs and the RAMs. Okay, the technical specification of the SSD and RAM. All right. Before we start, anyone tell me, guys, like what did we have discussed yesterday? Sir, we have discussed about some hardware components, Hmm. and the thing is we have studied about monitor, what is CPU cabinet, keyboard, mouse, and then Hmm. we have gone to understanding of motherboard, CPU, RAM, hard drive, and SMPS. Hmm. Then we have learned about CPU in detail, that what is CPU, what is this, what are the components of CPU. Like there are three types. First, we have learned about control unit, then arithmetic and logical unit, and then register. And then we have also learned about processors. Uh, like in Intel, we use i3, i5, i7, and the latest one is i9. And also, Intel has launched one new version, which is Intel Ultra series, which has a long battery life, and it comes with NPU. And then we have there comes AMD, which has Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, and latest one is Ryzen 9. And then we have learned about Snapdragon for processor, which was 7C, 8C, S Plus, and SA Lite. And for Apple, it is M1, M2, M3, or Pro Max Ultra. And technical specs of CPU like series, generation, force, and speed and family. We have learned about series, generation, and force. Today we will learn about speed and family of the technical Okay, spaces. very good. Hmm. Exactly. So we have seen like what are the external components or the parts of the computer? Monitor, CPU cabinet, mouse, and keyboard. And then we have seen the internal hardware components of a PC cabinet, right? In the laptop also, we have all these components in the PC also. Components such as motherboard, CPU, RAM, optical drive, hard drive, CPU heatsink, the floppy drive, the system fan, or the SMPS. So in all these hardware component, the floppy drive and the optical drive, we don't use it nowadays because these are obsolete, right? Instead of this, we use pen drive, SSDs, micro SD cards, this kind of storages, right? And we have seen in detail what is a CPU, what are the components of CPU, and how many types of processors are there in the market as of now for laptop and PC computer, right? Like Intel, AMD, Snapdragon, and Apple chips. Apple chips are coming in the MacBooks, right? But in the Windows laptops and the PCs, we have Intel, AMD, or Snapdragon processors, where the Intel and the AMD are the dominating. They are having their monopoly in the processor segment for laptop and computer. Right? Here we have families such as Intel families such as i3, i5, i7, i9. In the Ryzen also same categories. Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. We have understood how to check the technical specification of a processor, right? What things need to be checked, how to identify which one is the better processor, which one is the poor processor, like these kind of things we have seen, right? Technical specification. What is the meaning of the name of the processor when it is written when you see an Intel processor, when you see a Ryzen processor, what is the basically what is the meaning, right? That things we have seen, right? So CPU is almost done, I think, right? So coming to Sir, one question, sir. yeah, tell me. Uh, so can I ask in Hindi or in English? No problem. Hindi, English, any language. Acha, sir. Sir, the thing is, I am having confusion in this series part.
into, sir, in this series thing, yes, I'm, Series. yes, sir, I'm not getting. Not getting the series. Yes, sir, I have little bit of confusion going on in this thing. Okay, Because okay. what See. happened was when I was doing revision, I got little bit of struck. Okay, okay. Series, basically in the series you will see series means all of you like when you see an alphabet just after the processor name, this is your series. This represents the series. Like you see this processor name. This is the name of the processor. So the last alphabet is series. No, either it can be U, either it can be P, either it can be H, either it can be HS, either it can be Yes, sir. HX. Yeah. Yes, ठीक sir. है लाइक मींस एनी ऑफ दिस इसमें से कोई सा भी एक अल्फाबेट अगर आपको दिखता है तो वो उसका सीरीज है दैट इज ऑल है ना विच एनी अल्फाबेट यू सी दैट इज द सीरीज सो विच वन इज गुड वन मतलब इसमें से अच्छा कौन है विच इज द बेस्ट सीरीज विच इज द पुअर सीरीज लाइक Latest यू one कैन is HX. Sir, as per the सी जो आपने कल बताया था, H is the हाँ normal thing और HX जो है वो लेटेस्ट है जो भी, लेकिन हम लोग जो है V सबसे, सॉरी U जो है सबसे स्लो है, P हाँ नॉर्मल है और हम लोग जो यूज कर रहे हैं अभी वो P है और HS जो है। लेकिन सर इसमें क्या था ना कि मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा था, ये UP समझ में आ गया, HSH और HX नहीं समझ में आया। देखिए एच एस होता है ये इसका मतलब हाई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हाई एच का मतलब है हाई और एच का एस का मतलब है हाई स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। ठीक है हाँ एच का मतलब होता है ये वाला एच का मीनिंग है हाई सिंपल सा इसका मीनिंग है हाई परफॉर्मेंस ठीक है और एच एक्स का ओके। मतलब होता है हाई एक्सट्रीम परफॉर्मेंस ठीक है एक्सट्रीम परफॉर्मेंस ऐसा कुछ है ठीक है इसमें सबसे सर पावरफुल तीनों सीरीज का कौन एक सा एक है एग्जांपल दे दीजिएगा। only I want one example from it so that। हाँ ठीक है एग्जाम्पल में देखिए जैसे मतलब सबसे पहले देखिए इन तीनों में सबसे पावरफुल कौन सा है वो एच एक्स वाला पावरफुल है सबसे पावरफुल ठीक है द मोस्ट पावरफुल इज द एच एक्स सीरीज देन कम्स एच एस ठीक है एच एस मीन्स लाइक यू कैन से मीडियम परफॉर्मेंस है ना दैट इज व्हाट अच्छा see so here let us take an example say taking the same processor like suppose all i5 processor i5 13 generation and this is your 13420H HS like this. Then we have i5, let's say 13th generation. It is let's say wait, let's say 13 480H like this. And let's say we have i5. ठीक है same category का लेते हैं. Let's say this is i3 i5 13th generation. Let's say this is your 13th generation only 13 420 HX let's say HX like this. So you guys can see all of you like we have total three i5 processors, but both all three are not same. ठीक है ये तीनों same नहीं है. Why all three these are not same? Because this is HS series processor. HS is like means okay normal performance. Okay high performance but normal. But it is H means like good performance good. And this one is HX means high extreme performance the best performance you can get here best very powerful. So if you say like which processor is the most powerful processor here, this one. Last This one. one is the Last one. last one. It is the most powerful one. थोड़ा सा कम powerful कौन सा है ये वाला है ठीक है less powerful and this is the least powerful like this here you can see. Anyways like you will see H अगर है that is your powerful series. This is your powerful processor. In the H we have several categorization HS H and HX like this. Okay ये होता है. So that is what है ना ये series you can see the series like this thing in the Ryzen as well as in the Intel में ये चीज मैंने अभी Intel का प्रोसेसर लिया but suppose if it is written Ryzen processor also and you see the HSH or HX series that means you can identify ठीक है so this order you have to remember order ठीक है order याद रखना है order I have given here see U series is the lowest performance P series for medium performance like this
lightweight gaming you can do, light gaming है ना. HS is like what high standard है ना. From here the high performance starts, but it is not that much powerful. But yeah, anyways, it is powerful. H is high performance and HX extreme performance. Okay, and HX series processors are generally costly. थोड़ा सा महंगा होता है, right? HX series processors are costly. Okay, so if you purchase a laptop like after let's say 1 lakh, 1.5 lakh, 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs laptop, then there you get HX series. HX, okay. You will not get usually like HX series in below 1 lakhs, right? Below 1 lakh laptop. Almost we have to spend in lakhs, then only like we can get up to like HX series. Okay. So just you remember the order, which one is the most powerful, and that's it only. Okay. Nothing else. Okay, and you can find the series always in a processor. In the last you can see. If I show you in my processor, all of you see. Let me show you. Let us check in my device. Okay, if I go to the task manager, if I go to performance, and if I go to CPU, tell me everyone, my processor is which series? It belongs to which series? U series, sir. U series. Exactly. You can see the U here, right? On the right, last you can see U. So this is U series. Why we say series? Because in U we have so many processor which is having the U as an alphabet at last, right? बहुत सारा प्रोसेसर होता है जिसके पीछे U रहता है, तो वो सारे U सीरीज के प्रोसेसर है. जिसके पीछे P है वो P सीरीज वाले हैं, जिसके पीछे H है जो H सीरीज वाले हैं, ऐसा होता है, right? That's why we say U series, P series. So this one is the U series. That's means underperformance. Underperformance means like what task we can do. Normal web browsing you want to do. Normal. This is not for gaming. Simple. Okay, not for gaming, not for video editing. Simple. Only for normal tasks. Only for running MS Office applications or browsing or video watching. Like anything normally what we do now. Like that's what we can do it here. Okay, that's what. And here you cannot see the generation it is written on you. It is this 120U doesn't mean like it is 12th generation. It is actually a 14th generation processor. ये जो है ना ये 14th generation वाला है. This is 14th. Okay, guys. इधर 12 So जनरेशन लिखा हुआ है सर. sorry. ये इसमें 14 जनरेशन कहाँ लिखा हुआ है सर? हाँ 14 लिखा नहीं है बट ये है 14 का. ठीक है, ये 14 इसमें लिखा नहीं है बट एक्चुअल में 14 है ये. ठीक है, लेकिन यहाँ इसमें पे 12 लिखा हुआ है ना सर? सॉरी. वो 12 लिखा हुआ है ना? हाँ वो 12 लिखा ना. ये जो नंबर मैंने आपको जो नंबर बताया था ना 13 30, ऐसा नंबर दिखता है आपको 4 या 3 डिजिट का. तो ये ना इंटेल का नया प्रोसेसर है. ये जो है ना इंटेल का एक न्यू सीरीज है. ठीक है, वो कुछ कुछ ओके. स्पेसिफिक डिवाइसेस में रहता है तो वो वाला है. नॉर्मली आप देखिएगा तो ऐसा आपको 4 डिजिट का या 5 डिजिट का नंबर दिखेगा. उसमें ऐसा पता चल जाएगा कि ये 13 लिखा है तो 13 जनरेशन. ये थोड़ा अलग है. ठीक है, दिस इज नॉट सेम विद दैट. ओके सर. या ठीक है एवरीवन. सो क्लियर नो द सीरीज ऑल ऑफ यू. यस सर. क्लियर. ओके, या अंकित, इज इट क्लियर टू यू अंकित? Yes, sir. Thank you. Yeah. All right. Okay, is there anyone who is joining this session for the first time today? किसी का आज पहला सेशन है क्या? Okay, I think no one. ठीक है everyone. So that's all for the CPU. That coming to the memory. ठीक है, memory पे आते हैं. So what is अच्छा, how many types of memories are there in the like PC, computer, laptop? Generally, how many types of memory? Tell me. 2 टाइप ऑफ मेमोरी. Two types. Okay. What are the types? प्राइमरी और RAM and ROM. सेकेंडरी. No, RAM and ROM is the type of primary memory. Okay, not so first categorization we do in the basis of primary and secondary. So first is your primary and secondary. ठीक है, ये हो गया. Name some of the types of primary memory, all of you. रोम. ROM, ROM and RAM and ROM. RAM and ROM. Exactly. है ना? RAM and ROM. So these are your primary memories. Okay, now coming to secondary. Secondary में बताइए. What are the different secondary? एचडीडी. SSD, HDD. Okay, and हार्ड डिस्क. और कुछ होगा तो अपना फ्लॉपी डिस्क टाइप का. floppy disk. Floppy drive or floppy disk is also secondary memory.
but we don't use it, but still it is it is a secondary memory. Okay, yeah, pen drive, we can say pen drive, right? है ना? Yes. Optical Mic, disc. हाँ, optical disk, we can say, like, yeah, micro, what do you say, micro SSD, micro SD card, micro SD card, right? CD or DVD, CD, DVD, right? So these are your types of secondary memories, है ना? And RAM and ROM. अच्छा, some of the people, like, they get confused with between the SSD and the ROM, है ना? ROM, some of the people, like, some of the time people, they get confused between ROM and SSD. They say, like, they think like ROM and SSD both are same. Okay, मैं भी सर ROM, पहले सोच रहा था ऐसे एसएसडी और रॉम में एक ही है। हाँ, नहीं, एक नहीं होता है, ठीक है? बोथ, ये जो रोम होता है ना, और एसएसडी होता है, दोनों एक नहीं है। जैसे फोन वगैरह खरीदते हैं तो ऐसे कैजुअली बोल देते हैं कि इसमें रैम इतना दिया, वो रोम इतना दिया, वो वैसा नहीं होता है, ठीक है? रोम अलग होता है, स्टोरेज अलग है, और रोम अलग है। रोम इज डिफरेंट एंड एसएसडी इज डिफरेंट इन कंप्यूटर, ठीक है? तो रोम जो होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। दिस इज रीड ओनली मेमोरी, और इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। ओके, इन केबी, इसका साइज जो होता है वो केबी में होता है, हार्डली, वेरी स्मॉल। द रोम इज लाइक ऑफ वेरी स्मॉल साइज। इसमें क्या होता है, सिस्टम का इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। ओके, वेरी लेस। तो इसमें कोई भी अपना पर्सनल डेटा या पर्सनल कुछ फाइल्स वगैरह स्टोर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्टोर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आवर डेटा इन द रोम। At the time of manufacturing only, the manufacturer, they store some device information in the ROM only, and we cannot delete, right? We cannot delete the data which is stored in the ROM. That's why we say it as read only memory. ठीक है? तो जस्ट ये याद रखिए कि रोम और एसएसडी दोनों सेम नहीं होता है। रॉम का एसएसडी अलग, कैपेसिटी कितना होता है इसका? रोम का कैपेसिटी डिपेंड करता है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग कैपेसिटी में होता है। बट यूजुअली इसका केबी में होता है, केबी, ठीक है? एमबी में भी नहीं होता है। एमबी, चलिए, एमबी में होगा तो ज्यादा थोड़ा सा फाइल स्टोर कर सकते, बट इसका जो साइज होता है वो केबी में होता है, ठीक है? हो सकता है किसी एक डिवाइस में एमबी में हो जाए, बट यूजुअली देखा गया है केबी में इसका साइज रहता है, ठीक है? अब फिर कोई फिक्स साइज नहीं है ना कि इतना ही होगा, वैरी करता है थोड़े अलग अलग डिवाइसेस पे। ओके, द रोम रोम साइज इज नॉट फिक्स्ड that much KB, like 500 KB or like 120 KB, like this. Okay, it is not fixed. It can vary in जैसे कि different बोल different. रहा था कि 3 GB रैम 32 GB रॉम, इसमें तब तो 32 GB रॉम में इसमें एसएसडी आ जाएगा। नहीं, वो 32 GB रोम जो बोलते हैं ना, वो रोम नहीं होता है, वो स्टोरेज होता है, ठीक है? ये स्टोरेज, तो फोन फोन वगैरह में जो स्टोरेज यूज होता है फोन में, इन फोन द स्टोरेज विच इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड एज यूएफएस स्टोरेज, यूएफएस स्टोरेज, ठीक है? फोन में जो आता था यूएफएस स्टोरेज आता है। फोन में एसएसडी यूज नहीं करते ना, वी डोंट यूज एसएसडी और एचडीडी इन मोबाइल फोन्स, वी यूज यूएफएस स्टोरेज। तो स्टोरेज इज डिफरेंट, बट ROM is different. ROM अलग होता है, ठीक है? Always don't say ROM and the secondary storage both are same. Okay, so that is the first. Casually we say it as RAM and ROM are like good, but no, it is wrong. Okay, so ये याद रखिएगा, just remember that ROM is a primary memory. ROM primary memory होता है, but SSD is a type of secondary memory. ठीक है? So that is the thing first. Okay, so what is the full form of RAM here? RAM क्या होता है? What is RAM? रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी। Random access memory. ठीक है, very good. Memory. And what is ROM? It is read only memory. only memory। Read only memory. Read only memory. Acha, so RAM, we say it as a volatile memory, right? Volatile. Volatile memory, but ROM we say it as a non-volatile, right? Non-volatile. हाँ, why we say it as a non-volatile, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of it? एक में परमानेंट होता है, एक में नॉन नॉन परमानेंट शेयर नहीं होता। ओके, तो कहाँ पे परमानेंट रहता है और कहाँ पे नहीं रहता परमानेंट? मतलब हम लोग मतलब वार में कुछ रैम टाइप कर रहे हैं, रैम ऐसा वो चीज है सेव जहाँ नहीं पे हम लोग करेगा काम तो ये वोलेटाइल मेमोरी हो जाता है। तो सेव करने के बाद इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। ओके, ठीक है। हाँ, और भी कोई बता रहे थे? Sir, RAM is a मेरा वो temporary था कि memory सर and ROM is a permanent memory. RAM is a temporary memory and ROM is a permanent memory. नहीं ओके, सर, ठीक है। एक्चुअली में क्या है सर कि मतलब जो भी हम लोग सिस्टम में काम करते हैं तो काम करने के लिए हमें रैंडम एक्सेस मेमोरी का जरूरत होता है। बट अगर हम लोगों को सेव करना होता है तो फिर वो उसके लिए हम लोग रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। हाँ, ठीक है। शायद आपने बताया भी था ऐसा भी कुछ।
एग्जैक्टली देखिए, रोम को वोलेटाइल क्यों कहते हैं? व्हाई वी से रोम एज अ वोलेट सॉरी रैम एज अ वोलेटाइल मेमोरी? व्हाई? बिकॉज रैम कैन स्टोर, हाँ, बिकॉज रैम कैन स्टोर द डेटा टेम्पररीली अंटिल द पावर सप्लाई इज प्रोवाइडेड। ठीक है, जब तक पावर सप्लाई मिलता है तब तक रैम डेटा को स्टोर करके रखता है। ओके, until when power supply is provided to RAM, the RAM can store the data. But when the power supply is cut, then RAM will erase the data. It will delete everything. जैसे पावर सप्लाई कट हुआ, ये रैम क्या करेगा? इरेज डेटा इरेज कर देगा पूरा। इसलिए इसको वोलेटाइल कहते हैं। दैट्स व्हाई वी से इट एज वोलेटाइल। बट रॉम इज डिफरेंट, है ना? रॉम में एक बार डेटा स्टोर हो गया, डजेंट मैटर पावर सप्लाई इज गिवन और नॉट गिवन, इट विल नॉट इरेज ऑटोमेटिकली, है ना? अपने आप इरेज नहीं होता। दैट्स ऑल। That's why we say it is non-volatile. But RAM is a volatile memory because, like, means when the power supply is cut, then the data is stored in the RAM. It will automatically erase. Everything will be deleted. That's why it is volatile. Okay? तो ये होता है volatile और non-volatile. ठीक है, देखिए। अच्छा, ये like some other people they get confused. इसका एक ट्रिक है, like if you want to remember it. देखिए, ये V है ना, like यहाँ पे V है, तो इसको कंपेयर कीजिए। RAM में क्या आता है? A आता है ना, ए आता है, तो ए को उल्टा कर देंगे तो बी हो जाएगा ना, तो बी से वोलाटाइल हो गया। लेकिन वैसे ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर कंफ्यूजन होगा कि रैम वोलाटाइल है कि रैम नॉन वोलाटाइल है, वैसा। ओके, जस्ट लाइक, एनीवेज, ठीक है। सो रैम रोम कमिंग टू एसएसडी, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, है ना, मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ पीसी और अ लैपटॉप, इट इज योर रैम एंड एसएसडी। रोम के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो यूज होता नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है सिस्टम का, ठीक है। लाइक में सिस्टम का इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो दैट्स व्हाट, है ना, that we don't require to understand about the ROM in detail. RAM and SSD. Okay, these are important for your system. Why? Because along with a good processor, along with a very powerful processor, if you don't have a good RAM, if you don't have a good SSD, then obviously your performance will be not that much up to level like as expected by the processor. मतलब कहने का मतलब, RAM या SSD अगर आपका अच्छा क्वालिटी का नहीं है तो परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करता है ये, ठीक है। How it affects, let's understand. इसका different different types है, see. अच्छा, before we start, like what is the full form of SSD and HDD, all of you? इसका full form क्या होता है बताइए, SSD का? सॉलिड स्टेट ड्राइव। Solid Solid state solid, okay, hard disk drive. solid state drive and HDD Hard means disk. hard disk। हार्ड ड्राइव। हाँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पहले RAM पे समझते हैं कि कितना टाइप का RAM आता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ RAMs आर देयर इन द पीसी और योर लैपटॉप, ठीक है। सी ऑल ऑफ यू। अच्छा, पहले ये बताइए कि फोन में कौन सा RAM आता है? इन फोन, इन मोबाइल फोन्स, इन स्मार्टफोन्स, what type of RAMs are used? Anyone? कोई आइडिया है? नो आइडिया। UFS ओके, सी, is फोन में जो performed. रैम यूजुअली यूज होता है वो होता है LPDDR रैम। Yes. ओके, इन द मोबाइल फोन्स द रैम व्हिच वी यूज, दिस इज कॉल्ड एज LPDDR रैम। कंप्यूटर पे आते हैं पीसी में, ठीक है। कंप्यूटर या DDR। पीसी, हाँ, यहाँ पे क्या होता है? DDR रैम होता है, ठीक है, ये DDR। ओके, लैपटॉप में कौन सा यूज होता है? लैपटॉप DDR। DDR, है ना? DDR भी ऑल्सो यूज होता है ना, तो एग्जैक्टली exactly, दोनों यूज होता है। तो यहाँ पे LPDDR और DDR दोनों यूज हो रहा है। DDR को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, DDR को चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, एग्जैक्टली exactly, है ना? तो डी यहाँ पे क्या हो रहा है, लैपटॉप में दोनों तरह का रैम यूज होता है। इन द लैपटॉप बोथ द टाइप्स ऑफ रैम्स आर यूज्ड, LPDDR एंड DDR रैम्स। इन मोबाइल फोन्स मोस्टली वी यूज LPDDR एंड कंप्यूटर ओनली DDR, बट इन द लैपटॉप DDR, LPDDR both. So we have to understand all of you what is the difference between the DDR and the LPDDR. So let's understand. See, first two types of RAMs are there in the PC and laptops. Two types. देखिए, यहाँ पे मोबाइल फोन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पीसी या कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। ओके, टू टाइप्स ऑफ रैम्स, one is your LPDDR and one is your DDR. So इसका फुल फॉर्म क्या होता है? What is the full form of LPDDR? अच्छा, what is the full form of DDR? पहले DDR का देखते हैं फुल फॉर्म। What is डबल डेटा रेट, ठीक है, डबल डेटा रेट। तो LPDDR, what is the full form of LPDDR? It is also double data rate, but the LP stands for low powered, ठीक है, LP stands for low powered double data rate,
Okay, so LP means low power. That is the full form. Low power double data rate RAM and DDR means double data rate RAM. So two types of RAMs are there in the PCs and the like almost in the laptop. In the PC, so we have only DDR. Like what is the basic difference for PC? Difference between this DDR and LPDDR RAM is that one major difference that the DDR RAM can be extended, DDR RAM can be upgraded, but the LPDDR RAM cannot be upgraded. LPDDR RAMs cannot be extended. Okay, that is the concept. Okay, see what is the main difference here that it can be extended, it cannot be extended. LPDDR and DDR. So you can see LPDDR or DDR RAMs types. LPDDR can be are sorry non-upgradable. Okay, non-upgradable means you cannot extend the RAM. You cannot extend the RAM means let's suppose your system is having 8 GB LPDDR RAM, 8 GB LPDDR LPDDR RAM. आपके सिस्टम में क्या है कि LPDDR RAM लगा हुआ है वो 8 GB का है. तो अगर उसको ट्राई करेंगे उसको रिमूव करके कि हम लोग एक 16 GB का लगा ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. यूजुअली ऐसा नहीं होता. वी डोंट डू दिस लाइक दिस, है ना. So LPDDR RAMs, if you have, that is non-upgradable, non-upgradable. Okay, you cannot extend. But instead of that, you have DDR. इसके बदले में क्या है DDR RAM. Then extend, then we can extend. ठीक है, तब extend हो जाएगा, कोई problem नहीं. Why is it like this? ऐसा क्यों होता है भाई? Because LPDDR RAMs are always soldered RAM होती है, ठीक है. LPDDR वाला जो RAM होता है ना, ये LPDDR RAMs. All every type of LPDDR RAMs are soldered. Soldered means all of you, इसका मतलब क्या है? Like means it is fixed. Fixed on motherboard. Fixed on motherboard. Soldering कर दिया गया basically, right? We have done the soldering, so it is fixed on the motherboard, so we don't remove it. Remove नहीं होता ये. अब remove करने के तो कर भी सकते हैं ना, उसको दोबारा से soldering करके heat करके remove तो हो भी सकता है, but usually we don't do this. ठीक है, ऐसा होता नहीं क्योंकि जितना RAM लगा. सर एल सॉरी सर सर ये जो हाँ, आप बता रहे हो एल लो पावर डबल बता रहे हो तो सर अभी के मार्केट में क्या एल मतलब कौन सा यूज हो रहा है सर एलपीडीडीआर या डीडीआर? दोनों आता है, दोनों यूज हो रहा है. ठीक है, दोनों. कोई कोई ऐसा लैपटॉप देखिएगा जो थोड़ा सा पतला वाला लैपटॉप होता है, लाइक सम ऑफ द थिन लैपटॉप, प्रोफेशनल लैपटॉप दे कम विद द एलपीडीडीआर रैम, उसमें वो यूज होता है एलपीडीडीआर रैम ज्यादा. एलपीडीडीआर मतलब पतले वाले लैपटॉप में यूज होता है क्योंकि क्या होता है एलपीडीडीआर रैम जो होता है वो बहुत ही कम हीट जनरेट करता है, ज्यादा हीट नहीं करता है ये, सर है ना. शायद सरफेस लैपटॉप। हाँ, कह सकते हैं. But I'm saying no that LPDDR RAMs are coming in the thin हाँ laptops, right? Light and thin laptops because it generate very less heat. Okay, very less heat and it consumes very less power. So it consume very less power. That means battery efficiency is also very good in the LPDDR RAM. ठीक है, battery efficient होता है थोड़ा सा. That's why I've written here efficiency focused. Efficiency focused. That means battery life you can get better in LPDDR RAMs, and it is low, using very low power, and it generate very less heat, very low heat, है ना. And that's why it is used in the thin and light laptops to LPD the RAMs in thin and lightweight laptops. Okay, जो पतले वाले जो होते हैं थोड़ा उसमें यूज होता है ज्यादातर. ठीक है, but DDR RAMs are totally opposite. DDR RAMs consume more power. DDR RAM generate more heat and these are upgradable. ठीक है, ये क्या होता है थोड़ा सा पावर ज्यादा कंज्यूम करता है, हीट भी थोड़ा ज्यादा जनरेट करता है DDR RAM, एंड ये अपग्रेड हो सकता है. यू कैन अपग्रेड. ये फिक्स नहीं रहता, ये सोल्डर नहीं है ना. दिस इज नॉट सोल्डर. डीडीआर रैम्स आर नॉट सोल्डर ऑन द मदरबोर्ड. यू कैन रिमूव द डीडीआर रैम स्टिक, इसको रिमूव कर सकते हैं. ओके, यू कैन रिमूव द डीडीआर रैम स्टिक एंड यू कैन इंसर्ट अ न्यू रैम स्टिक. सी लाइक लेट मी शो यू. ये जो आपको दिख रहा है दिस, इट इज अ टाइप ऑफ डीडीआर रैम. सी यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज DDR4 रैम. दिस इज DDR4. सो DDR4 रैम जो होता है वो एक तरह का स्टिक होता है, लाइक DDR4 रैम इज अ टाइप ऑफ स्टिक लाइक दिस, एंड वी कैन रिमूव इट, वी कैन इंसर्ट इट. तो ये जो स्लॉट होता है ना, यहाँ पे रैम को इंसर्ट किया जाता है, लाइक दिस काइंड ऑफ स्लॉट इज गिवन. ऐसा एक स्लॉट होता है. ओके, हेयर वी इंसर्ट द DDR रैम्स. ओके,
बट LPDDR रैम सा सोल्डर, वो सोल्डर रहता है। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन में मदरबोर्ड पे सोल्डर हो जाता है ना, सोल्डरिंग करते हैं, सो वैसा होता है। ठीक है, तो सर रैम कैन अगर बी मान लाइक। लीजिए सर अगर मान लीजिए कि जैसे कि अभी ये DDR3 4 है, जैसे सपोज हम हमारे लैपटॉप में, और हम लोग हाँ का रैम अभी 8 GB है, तो अपग्रेड करा के 16 करना है। बट सर जब हाँ, हमारा सोल्डरिंग रहेगा तो उसको तो सर हम लोग बढ़ा नहीं पाएंगे। नहीं नहीं बढ़ा पाएंगे। तब तो सर उसका वही, डिसएडवांटेज ही है। हाँ वो डिसएडवांटेज है ना उसका, कि आप उसको कभी भी बढ़ा नहीं सकते। जितना है तो उतना ही रहेगा लाइफ टाइम में। अगर 8 GB वाला आपका LPDDR रैम लगा हुआ है लैपटॉप में, तो हम्म, समझिए पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, तब आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए नहीं बढ़ता है। LPDDR रैम के केस में आप उसको बढ़ा नहीं सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, 8 GB है तो 8 GB रहेगा लाइफ टाइम तक, 16 GB है, 16 GB है तो 16 GB लाइफ टाइम तक उतना ही रहेगा, है ना। वैसे ही DDR के केस में ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी है, DDR का ये एडवांटेज है। In the DDR RAM, we have the advantage that we can remove the previous RAM stick and we can install a new RAM stick. पुराना वाला ये लेट्स से कि ये लगा हुआ है 8 GB का, दिस इज 8 GB RAM, सो इसको रिमूव कर सकते हैं, वी कैन रिमूव दिस फ्रॉम हेयर एंड वी कैन इंसर्ट अ न्यू RAM स्टिक ऑफ 16 GB। ऐसा कर सकते हैं, ये यस। चीज है। सो दैट इज ओनली पॉसिबल विद द DDR RAMs, नॉट विद द LPDDR। ठीक है, ये चीज। और सर तो वही चीज LDDR बनेगी। से किस टाइप का होता है? हाँ, LPDDR जो रहता है ये भी मतलब नॉर्मली दिखता है, बट एक्चुअल में ये शोल्डर रहता है, ये फ्लैट रहता है, लाइक इट इज शोल्डर्ड फ्लैट, है ना, फ्लैट ऑन द मदरबोर्ड। बट DDR जैसे आपने देखा वो लाइक वर्टिकली उसको लगाते हैं ऐसे, है ना, स्लॉट में। ओके, so that is the concept. Okay, the main difference, it is not non-upgradable, it is upgradable. Okay, LPDDR RAMs generate less heat, consume less power, but DDR RAMs generate more heats, consume more power, and it is more performance focused. ठीक है, परफॉर्मेंस फोकस ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें वैसा कोई बैटरी लाइफ के लिए ऐसा कोई कस्टमाइजेशन नहीं है कि बैटरी ज्यादा प्रोवाइड हो, वैसा कोई नहीं। तो रॉ परफॉर्मेंस निकाल के देता है, जितना परफॉर्मेंस एक DDR रैम निकाल सकता है ना, उतना परफॉर्मेंस ये निकाल कर दे सकता है। ठीक है, दैट इज द थिंग। बट LPDDR में ऐसा भी होता है कि कोई LPDDR 4 4 वाला रैम है, वो LPDDR 3 3 वाले रैम के जितना परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, वैसा भी होता है ना। लाइक मीन्स कि आप वो कोई एक्सट्रीम परफॉर्मेंस वाला टास्क कीजिएगा ना, कोई गेमिंग टास्क कीजिएगा, तब जाके उतना परफॉर्मेंस निकलेगा। नॉर्मल टास्क कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल टास्क में जितना लोएस्ट परफॉर्मेंस हो सकता है ना, उतने पे रन करता है ये रैम। ठीक है, बट DDR रैम जो होता है, मतलब आप चाहे नॉर्मल सा टास्क कीजिए या फिर परफॉर्मेंस वाला फोकस गेमिंग वगैरह रन कीजिए, उसमें क्या होता है, मतलब जितना परफॉर्मेंस ये निकाल सकता है उतना निकाल कर ये देता है, दैट इज व्हाट। See what I'm saying, that all of you, that LPDDR RAMs are efficiency focused. That means if you suppose you are doing some basic task, like you are doing browsing or you are doing MS, like some running MS Word, this kind of applications, so it will not take consume that much power. LPDDR RAM will not consume that much of power. How much power is required for running those all the small processes? It will take only that much, है ना? But when we do gaming or like this kind of heavy end task we are doing, then only it will consume more power. Then only it will deliver that much of performance like this. Okay, until and unless it is not required, LPDDR RAMs are not providing that power. But DDR RAMs always they are performance focused, है ना? So whenever like you are doing a normal task or a heavy end task, DDRM always consume more power and it will deliver that how much power it can produce, how much like how much performance it can give. Okay, so that's what I am saying here. Okay, okay. So in the LPDDR and the DDR we have several types, right? Like in the DDR we have DDR3, DDR4, DDR4X, DDR5, DDR5X. In LPDDR also we have LPDDR3, LPDDR4, 4X, 5, 5X like this. है ना? See, इसमें ये भी है, in the DDR we have DDR1 also, DDR1, DDR2 also is there, DDR2, but these are not used, अभी के टाइम पे ये यूज नहीं होता, not used nowadays। ठीक है, क्यों, why we don't use DDR1 DDR2? Because it is very slow। ओल्ड फैशन। हाँ, इसका स्पीड बहुत स्लो होता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नॉट, हाँ नॉट रिकमेंडेड आज के टाइम पे सर तो, अब तो लाइक नए में भी DDR3 नहीं आता। सॉरी। सर अब तो नए लैपटॉप भी लेके जाएंगे ना, तो DDR3 नहीं आता। DDR3 नहीं आता है, थोड़ा सा DDR3 कहाँ पे आएगा, जैसे थोड़ा सा लो बजट वाला लैपटॉप परचेज कीजिएगा ना, 30,000 के नीचे वाला, वहां पे DDR3 मिल जाएगा। ठीक है। सर अगर आप हाँ, मतलब अब नहीं सर, अभी तो 30,000 सर, अभी तो लैपटॉप उतना तो कम लेते ही हैं लोग, तो सर DDR3 अभी देखने गए थे तो वही बोल रहे थे कि DDR3 नहीं है अभी, तो आता नहीं है।
हाँ, अभी के टाइम पे मतलब DDR4 मिल रहा है, दैट इज गुड। DDR4 से हायर वेरिएंट मिलता है तो दैट इज गुड, है ना। DDR3 ऐसा नहीं कि अभी एकदम ही नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, यू कैन गेट। जैसे क्रोमबुक वगैरह होता है ना, क्रोमबुक या फिर उसमें मिल जाएगा आपको, है ना। या फिर कोई थोड़े लोअर वेरिएंट वाले जो लैपटॉप्स होते हैं जिसमें पेंटियम और सेलेरॉन का प्रोसेसर होता है, वहां पर भी मिल सकता है DDR3 DDR, है ना, वो डिपेंड करता है। तो वो चीज़ है। ठीक है, तो जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा रैम मिलेगा ना, लाइक जितना हायर वेरिएंट जाएगा उतना अच्छा कंपोनेंट्स हार्डवेयर मिलेगा। दैट इज द थिंग, है ना। प्राइस इसी में तो बढ़ता है ना। दैट्स द थिंग। ओके, सी। तो दैट्स, है ना, इन द LPDDR वी हैव DDR। तो यूज अभी कहाँ से हो रहा है, लाइक विद फ्रॉम वेयर वी यूज इट नाउ डेज, और फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द रैम्स, लाइक फ्रॉम थ्री। ओके, वेरिएंट नंबर थ्री, लाइक मीन DDR3 और LPDDR3। ओके, तो see, we are having several types of RAMs. Let me write it over here. See all the different RAM and their typical speed. इसका स्पीड क्या होता है? See, DDR RAMs are speeds are written in मेगा, ठीक है, मेगा हर्ट्स, ठीक है। बट दैट इज योर LPDDR RAMs speed are mentioned in the mega transfer per second. both are actually same, ठीक है। DDR LPDDR RAM का मेगा ट्रांसफर पर सेकंड ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। दिस इज रिटन इन मेगा हर्ट्स। LP DDR RAMs actually both are same. You can say, like, you can say both are same only. Okay, so you can see DDR RAMs and LPDDR RAM typical speeds, ठीक है। कोई DDR RAM है, जैसे DDR4, उसका टिपिकल स्पीड कितना होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। कोई LPDDR4 RAM है, उसका टिपिकल स्पीड कितना होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट्स ऑल। एंड हियर यू कैन सी ऑल द टाइप्स ऑफ रैम्स विद देयर स्पीड। सारा रैम यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है along with their speed. DDR RAM, you can see it is like 400 mega transfer per second. DDR1 very slow. DDR2 800 only, right? Very slow. DDR3 से थोड़ा ठीक है। From DDR3 it is like what? Usable RAM we can say, है ना। तो it is like up to 1800 mega transfer per second, up to it can go, है ना। इसमें आप चेक कर सकते हैं like which one is the fastest. So you can see DDR5X RAM is the fastest RAM, है ना। इसका जो स्पीड होता है, लाइक इट कैन गो अप टू 8000 एंड मोर देन 8000 ऑल्सो। ओके, दैट इज द थिंग। सो फास्टेस्ट रैम इज दिस वन, स्लोएस्ट इज दिस वन। एंड यू कैन सी लाइक विच वन इज द फास्टेस्ट। इफ यू कंपेयर, यू कैन कंपेयर बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ रैम्स ऑल ऑफ इट। सी, इसमें इफ यू कंपेयर लाइक टू कैटेगरी, लाइक दिस इज LPDDR4X एंड DDR4X, सो विच वन इज द फास्टेस्ट इन DDR4X एंड LPDDR4X? ऑलमोस्ट बोथ आर सेम, राइट, दोनों सेम ही है ना। नो इट कम्स, अब दोनों का स्पीड सेम है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा? डिफरेंस वही चीज़ है यहाँ पे कि DDR थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस फोकस है, ये थोड़ा सा बैटरी फोकस्ड है। दिस इज नॉन अपग्रेडेबल, दिस इज अपग्रेडेबल, दिस इज, सो इट डिपेंड्स ऑन द यूजर, लाइक विच टाइप ऑफ रैम यू वांट इट, लाइक दैट इज व्हाट, है ना। सी, सो इसमें चेक कैसे करते हैं? हाउ डू यू चेक द स्पीड ऑफ योर रैम, ना, हाउ यू कैन चेक लाइक व्हाट टाइप ऑफ रैम इज देयर इन योर लैपटॉप, है ना। कैसे पता चलेगा कि हमारे लैपटॉप में कौन सा रैम लगा हुआ है? तो ये स्पीड देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड देख के पता करना है, और पहले ये पता करना है आपको कि आपके डिवाइस में LPDDR रैम है कि DDR रैम। First thing you should know that whether your device is having a LPDDR RAM or DDR RAM. See, अच्छा, तो can anyone tell me like how we can check that whether our device is having LPDDR or DDR RAM? कैसे पता चलेगा? How to know? प्रॉपर्टीज है Sorry? सर, पीसी की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में, अच्छा ठीक है, हाँ वो तो चेक कर सकते हैं। DDR प्रॉपर्टीज में सेटिंग्स में अगर आपको दिख रहा है दैट इज गुड, बट अगर नहीं दिख रहा है तो कैसे चेक करते हैं? सी, और क्या चेंज हुआ कि एट एट अप टू एट लिखा होगा तो ये LPDDR भी है। और वन अप टू टू लिखा होगा तो DDR। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हाँ वही होता है। देखिए, एक तो ये कर सकते हैं लाइक दिस, तो वन थिंग वी कैन डू दैट, ओपन द बैक पैनल ऑफ द लैपटॉप एंड चेक दैट वेदर द रैम इज सोल्डर्ड और नॉट। क्या करेंगे, लैपटॉप को पीछे बैक पैनल को खोल लेंगे और वहां पे चेक करेंगे कि रैम को सोल्डर किया गया है कि नहीं किया गया। सोल्डर नहीं है मतलब DDR रैम है, सोल्डर है मतलब LPDDR है, वही चीज है। बट विदाउट ओपनिंग द बैक पैनल ऑफ द लैपटॉप, हाउ वी कैन चेक? सो वी कैन चेक दिस थिंग इन द टास्क मैनेजर, बिना कोई हार्डवेयर को खोले बिना कैसे चेक करना है? सो वी कैन चेक दिस थिंग इन द टास्क मैनेजर वेदर यू आर हैविंग द LPDDR और द DDR रैम। So let us go to the task manager. यहाँ पे task manager में आइए, then come to performance and then come to memory. So in the memory, see all of you, we have to check what we have to check. We have to check the slot used.
स्लॉट्स यूज्ड, ये वाला, इसको चेक करना है। ओके, सो इफ यू सी द स्लॉट्स यूज्ड, वन ऑफ टू, टू ऑफ टू, और वन ऑफ फोर, और टू ऑफ फोर, और फोर ऑफ फोर, लाइक दिस। सो इसका मतलब क्या होता है? दिस मीनिंग इज DDR रैम, सिंपल, इसका मतलब है DDR रैम है। ओके, इफ यू सी वन ऑफ टू, टू ऑफ टू, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इसका मीनिंग क्या है? सी लास्ट में जो नंबर दिख रहा वन है ऑफ टू का मतलब है कि सर इसमें दो स्लॉट्स है सर। दो स्लॉट्स में क्या है कि एक स्लॉट लगा हुआ है, और जो आपका आपने सेकंड में लिखा है 2 ऑफ 2, इसमें दो स्लॉट्स है और दोनों स्लॉट्स में DDR लगा हुआ है। और वन दोनों ऑफ उसमें फोर लगा। मतलब 4 स्लॉट्स है, और उस 4 स्लॉट्स में सिर्फ एक स्लॉट में लगा हुआ है। 2 ऑफ 4 का हम्म। मतलब है कि 4 स्लॉट्स है और 4 स्लॉट्स में दो लगा हुआ है। 4 ऑफ 4 का हाँ, मतलब है कि 4 स्लॉट्स है और 4 स्लॉट्स में भी मतलब सारे में रैम लगा हुआ है, DDR रैम। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड ना। सो दिस लास्ट नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑल्सो। ये लास्ट वाला नंबर क्या बता रहा है? ये लास्ट वाला नंबर बताता है, ये वाला, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्लॉट्स। कितना स्लॉट है रैम का हमारे डिवाइस में, हाउ मेनी स्लॉट्स आर देयर इन आवर डिवाइस फॉर रैम, नंबर ऑफ रैम स्लॉट्स। ओके, एंड दिस नंबर इट सेज लाइक हाउ मेनी रैम्स यू आर यूजिंग, कितना रैम मतलब यूज हो रहा है डिवाइस में। सो इसका मतलब है दो स्लॉट है टोटल, जिसमें से एक स्लॉट में रैम लगा हुआ है, एक स्लॉट खाली है। One of two means there are two slots in our device for RAM, and in one of the slot we have already inserted a RAM, and one of the slot is empty. Okay, that is the thing. Two of two means there are total two slots, and both the slots are used. दोनों slot use हो चुका है, because on the both the slots we have installed the RAM. Four means total four RAM slots are there, and in which one slot is full. One slot is being used here. Two slots used, four slots used. Four of four means four slots are there and चारों में RAM लगा हुआ है. Okay, four of four means there are total four slots of RAM, and in all the four slots are being used by the RAM sticks. Okay, that is the concept. तो if you see this thing, this means DDR RAM. ठीक है, तो DDR RAM में मोस्टली मतलब फोर स्लॉट जो होता है ना, बहुत ही रेयर होता है, मतलब रेयर थोड़ा, मतलब हाई एंड पीसी होगा ना तो वहाँ पे चार स्लॉट होगा। थोड़ा सा हेवी एंड पीसी होगा तो, ठीक है, थोड़ा सा महंगा वाला पीसी होगा, वहां पे चार स्लॉट मिल जाएगा। यू कैन गेट फोर स्लॉट्स इन, लाइक इन एक्सपेंसिव पीसी, पावरफुल पीसी। यूजली वी गेट टू स्लॉट्स। ठीक है, यूजली कितना मिलता है? दो स्लॉट मिल जाता है। लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, इन लैपटॉप एंड इन पीसी, दोनों में क्या होता है कि दो स्लॉट यूजली मिल जाएगा, दो स्लॉट, टू स्लॉट्स तो इट इज कॉमन फॉर DDR रैम। ठीक है, नॉट फॉर LPDDR। okay, in laptop. So if you see one of two, two of two, that means it is your DDR RAM. But यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? You can see all of you. What is this? It is 8 of 8. So if you see 8 of 8, if you see 10 of 10, if you see 12 of 12 like this, so इसका मतलब क्या होता है? This is your LPDDR RAM. LPDDR RAM. Okay. देखिए, सिंपल सा याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि मतलब आपको DDR रैम जो होता है वहां पे आपका हाईएस्ट नंबर कहाँ तक जा सकता है? फोर तक जा सकता है, फोर या सिक्स हाईएस्ट, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो लास्ट सेकंड वाला नंबर है ना, ये मतलब कितना हो सकता है? फोर हो सकता है, या तो सिक्स, मतलब सिक्स रेयर है बहुत ज्यादा, फोर हो सकता है यूजुअली। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एट दिख रहा है, तो क्या एट स्लॉट्स है? नहीं, एट स्लॉट्स नहीं है। ठीक है, आठ स्लॉट बहुत ही रेयर होता ही नहीं है यूजुअली। ठीक है, सो एट, ये एट का मतलब है स्लॉट्स, स्लॉट्स नहीं है एक्चुअल में, क्या है? पिंस है। सो मेरे डिवाइस में जो रैम लगा हुआ है, इन माई डिवाइस द रैम विच इज इंस्टॉल्ड, दिस इज 16 GB रैम। So there are total 8 pins, and one pin you can say it is of 2 GB. So 8 into 2 कितना हो गया? 8 into 2 16 हो गया ना, that is what. Okay, so when you see 8 of 8, all of you, 8 of 8 or 10 of 10 like this, that means it is a LPDDR RAM. DDR का DDR पहचानना सिंपल है। ठीक है, like 1 of 2, 2 of 2, okay, like this है ना, 2 of 4 like this. So this is your what, all of you, DDR RAM, DDR। इसके अलावा कुछ और होता है, दैट मीन्स योर LPDDR, सिंपल। ओके,
if you see 1 of 2, 2 of 2, or 4 of 4, like 2 of 4, like this, है ना, that is your DDR RAM. But instead of this, if you see any other number like 8 of 8 of 2 10 of 10, higher number, that means it is a LPDDR RAM. ठीक है? This thing is clear all of you, how to check the type of RAM. सपोज सर 6 of 8 लिखा होगा तो इसकी क्या बोला जाता है? 6 of 8 6 of 8 का मतलब होता है वो भी आपका DDR RAM है, DDR 6 of 8 DDR है, ठीक है, क्योंकि DDR में ही ऐसा होता है, DDR में आपका ये नंबर अलग होगा, ये नंबर अलग हो सकता है। LPDDR में क्या होता है, दोनों नंबर इक्वल होगा LPDDR में, ठीक है, बोथ द नंबर्स विल बी इक्वल। जैसे मैंने बोला 8 of 8, 10 of 10, है ना, सी यू, दोनों नंबर इक्वल है, बोथ द नंबर्स आर इक्वल, राइट। सो इफ यू सी 6 of 8, दैट मीन्स DDR रैम। और DDR रैम के केस में 8 स्लॉट कभी होता नहीं है ज्यादातर, हार्डली आपको 4 स्लॉट मिलेगा, ठीक है, हार्डली। 8 स्लॉट वाला रैम, 8 स्लॉट वाला मदरबोर्ड अभी अभी तक तो वैसा मैंने देखा नहीं है, ठीक है, जिसमें 8 स्लॉट हो रैम का, ठीक है। तो वो हो सकता है कोई बहुत ही बड़ा सुपर कंप्यूटर होगा, लाइक मिस वहां पे यूज होगा, बट एनीवेज 8 स्लॉट नहीं आता है, मैक्सिमम 4 स्लॉट दिखेगा या तो 6 स्लॉट हो सकता है, ठीक है, दैट इज थिंग, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. क्लियर नो एवरीवन हाउ टू चेक द टाइप ऑफ रैम, ठीक है, या एंड सी द स्पीड यू कैन चेक ऑल, यहाँ पे आपको स्पीड दिख जाएगा, स्पीड ऑफ योर रैम, स्पीड ऑल्सो मैटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड दिख रहा है, हाउ मच इट इज, 4267 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड है वो कौन से टाइप के रैम से मैच कर रहा है? हाँ, LPDDR। हाँ, बट एलपीडीडीआर में कौन सा रैम? अगर यहाँ पे चार्ट में हम लोग देखें, सी लेट मी ओपन दैट चार्ट है, वेट से, प्लीज म्यूट हिम, सी। सो यहाँ पे जो रैम दिख रहा है आपको, हाँ, सो यू कैन कंपेयर द स्पीड ऑफ, अब ये स्पीड चेक कीजिए, अब बताइए मेरे डिवाइस में कौन सा रैम लगा हुआ है, इन माई डिवाइस विच टाइप ऑफ रैम इज यूज्ड? LPDDR4X। हाँ, LPDDR4X। और DDR4X कौन सा, DDR4X या LPDDR4X? बिकॉज दोनों का रैम तो, दोनों का स्पीड सेम है ना, तो दोनों में से कौन सा है फिर? LPDDR4, LPDDR4X। PDDR4X. LPDDR4X, okay, why not DDR, why not तो DDR4X? 8 है ना स्लॉट यूज, 20 वो per स्पीड second। में आता है। Sorry, सॉरी, speed is MT per second। MT पर सेकेंड, हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, speed is also MT per second, and slot use, you can see in my device slots used are 8 8 of of 8, 8। and 8 of 8 always means LPDDR RAM, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो रहा है कि ये LPDDR RAM है। और इससे क्या पता चल रहा है, प्लीज म्यूट नो, ठीक है। सो स्पीड से पता, लाइक स्लॉट से पता चल रहा है कि ये कौन सा टाइप का रैम है, LPDDR रैम है। स्पीड से पता चल रहा है कि LPDDR4X है, ओके, 4X रैम। सो यू कैन से इन माई डिवाइस द रैम विच इज इंस्टॉल्ड, इट इज LPDDR4X रैम, LPDDR4X, दिस इज द रैम विच इज यूज्ड इन माई डिवाइस, ओके। सो ये जो 16 GB का रैम दिख रहा है ना, दिस इज 16 GB LPDDR4X रैम, okay, that is how you guys can identify, like you can check which type of RAM is there in your device. First thing, you have to check the number of slots used. Second thing, you can check the speed. So from the slots used, you can identify like whether it is a LPDDR or DDR RAM, or by from the speed you can identify that in the LPDDR or DDR RAM which type of RAM it is, okay। क्या बोला, हाँ, पहले आपको स्लॉट चेक, स्लॉट देख लेना, स्लॉट से क्या पता चलेगा कि कौन से टाइप का रैम है, LPDDR है कि DDR है, वो पता चल जाएगा। तो फिर उसमें कौन सा टाइप है, मान लीजिए LPDDR है या DDR है, तो उसमें कौन सा टाइप होगा, वो कैसे पता चलेगा, स्पीड देख के, स्पीड से पता कर सकते हैं डायरेक्टली कि कौन सा टाइप का रैम है यहाँ पे चार्ट में। अगर ऐसा, ये कब करते हैं, मतलब सिस्टम में अगर आपका अवेलेबल नहीं है, लाइक सपोज होता है विंडोज के सेटिंग्स में या फिर सिस्टम इंफॉर्मेशन है, या जहाँ पर भी अलग अलग लैपटॉप में होता है, तो वहां पे अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो दैट्स ओके, बट इफ इट इज नॉट गिवन, द सिस्टम इंफॉर्मेशन और एनी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट मेंशनिंग व्हाट टाइप ऑफ रैम इट इज देयर इन योर डिवाइस, देन यू कैन डायरेक्टली चेक लाइक थ्रू दिस, ऐसे चेक कर सकते हैं टास्क मैनेजर में।
तो लाइक मीन सम ऑफ द टाइम्स वी नीड टू चेक द कंपेटेबिलिटी ऑफ द रैम, है ना, कंपेटेबिलिटी चेक करना पड़ता है। क्योंकि इफ सपोज यू आर गोइंग टू एक्सटेंड द रैम ऑल ऑफ यू, अगर आप रैम एक्सटेंड करने जा रहे हैं, है ना, तो ये चेक करना जरूरी है कि पहले से कौन सा रैम यूज हो रहा है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट विच टाइप ऑफ रैम इज बीइंग यूज्ड, है ना। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि लेट्स से ऑलरेडी, लेट्स से यू यू ऑन योर इन योर डिवाइस देयर इज DDR4 रैम, तो अब DDR4 के जगह में आपको रैंडमली कोई सा भी रैम लगा दीजिएगा, लेट्स से DDR4 के जगह आपने DDR5 लगा दिया, DDR5, है ना, आपको नहीं पता था, लेट्स से वी डोंट नो दैट विच टाइप ऑफ रैम इज देयर इन माय डिवाइस, एंड DDR4 रैम था एक्चुअल में, मैंने क्या किया कि DDR4 को हटा के DDR5 लगा दिया, तब क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? प्रॉब्लम ये होगा कि सिस्टम फिर उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, सिस्टम विल नॉट सपोर्ट द DDR4 5 रैम, एंड इट कैन हैपन दैट योर डिवाइस विल नॉट स्टार्ट, आपका डिवाइस स्टार्ट नहीं होगा, है ना, रन ही नहीं कर पाएगा। तो कंपेटिबिलिटी प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए तो इसलिए जो टाइप का रैम लगा हुआ है उसको चेक करना है पहले, एंड देन वी हैव टू एक्सटेंड इट। तो अगर ये 8 GB का है तो वही 8 GB का है, तो फिर 16 GB का ही DDR4 रैम को लगा देना है। 16 GB का DDR4, तो हम लोग कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी, बट वी डोंट चेंज द टाइप। ठीक है, टाइप चेंज नहीं करना है, टाइप वही रहेगा, बट कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटी पहले 8 GB का था, फिर उसको बढ़ा के हम लोगों ने 16 GB का लिया, बट टाइप वही यूज कर रहे हैं, टाइप DDR4 ही है, DDR4 पहले से था, तो DDR4 ही यूज हो रहा है यहाँ पे, DDR4। ठीक है, डोंट यूज अ हायर टाइप ऑफ रैम, हायर कैटेगरी रैम और लोअर कैटेगरी रैम, जिस टाइप का रैम यूज हो रहा है उसी टाइप में एक्सटेंड करना है। ओके, दैट इज वाई, बिकॉज कंपेटेबिलिटी इशू हो सकता है इसमें। ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. हाँ, हाँ, सो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे ना, लाइक सपोज द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ रैम, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ रैम, क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं हम लोग रैम के अंदर, जैसे मैंने CPU में डिस्कस किया, राइट, वी हैव डिस्कस इन द CPU दैट वी चेक द सीरीज, चेक द जनरेशन, चेक द कोर्स, चेक द स्पीड, चेक द फैमिली, राइट। तो हेयर व्हाट थिंग्स वी कैन चेक ऑल ऑफ यू, रैम में क्या क्या चीजें चेक करेंगे बताइए। टाइप ऑफ रैम, LPDDR और DDR। हाँ, वो चेक कर लेंगे, DDR LP DDR है, ठीक है, दैट्स गुड। हाँ, बट सबसे पहले जो चेक किया जाता है स्पीड चेक किया जाता है। ठीक है, स्पीड, स्पीड ऑफ रैम, हाउ मच फास्ट इट इज। ठीक है, स्पीड एंड टाइप, स्पीड एंड टाइप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, टाइप मीन्स वेदर इट इज DDR और वेदर इट इज LPDDR, DDR एंड LPDDR, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड क्या चेक करना है? सेकंड यही हो गया कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी, दो चीजें चेक करते हैं, दैट इज एनफ। ठीक है, ये एनफ है, स्पीड, टाइप, कैपेसिटी, है ना। देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी नीड टू चेक द स्पीड एंड द कैपेसिटी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम्स। लेट्स से कि एक यहाँ पे 8 GB का, लेट्स से देयर इज अ 8 GB DDR5 रैम, ठीक है, DDR5 रैम, और दूसरे साइड में ऑप्शन है हमारे पास एक 16 GB का, वन मोर ऑप्शन वी हैव एज 16 GB, एंड इट इज DDR4X रैम, 4x। ओके, सो टेल मी ऑल ऑफ यू कि विच रैम विल प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस, दोनों रैम में से किसमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा आपको, दोनों में बेहतर कौन है परफॉर्मेंस के बेसिस सर ऑब्वियसली 8 GB DDR5 हमें मिलेगा, क्योंकि 8 DDR5 बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगा। नहीं कोई ज्यादा पे? इशू नहीं हो। सॉरी अंकित, आई थिंक आपके एंड से नॉइज है बहुत ज्यादा। सर नहीं होगा सर, DDR5 ज़्यादा अच्छा से यूज होगा ना सर। ओके ओके, सी जस्ट म्यूट, आई एम जस्ट सर चेकिंग। नो हाँ ठीक है, देखिए अरे 8 GB सर, DDR5 DDR5 क्योंकि फास्ट है सर, तो जब सबसे ज्यादा स्पीड उसी का आएगा ना, क्योंकि एग्जैक्टली, एज हाँ पर वो लेटेस्ट। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, तो ये फास्ट है, ठीक है, परफॉर्मेंस यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये थोड़ा स्लो है। ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ओके, बेटर परफॉर्मेंस यू कैन गेट इन द DDR5 रैम, इवन इफ इट इज लाइक 8 GB,
ये 8 GB का है ना, ये 16 GB का है। बट फिर भी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस जब यहाँ पे बात किया जाएगा तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा होता है। द DDR5 RAM स्पीड इज मोर देन DDR4X RAM, है ना। यू कैन चेक द RAM स्पीड ऑफ, यहाँ पे RAM का स्पीड चेक कर सकते हैं। ये DDR5 का RAM होता है इतना, DDR5 जो RAM होता है उसका स्पीड इतना होता है, और DDR4X का इतना होता है, 4 to 6 ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा है ना। तो इफ मोर स्पीड इज देयर देन इट विल परफॉर्म बेटर। That's why even if it is like 8 GB, like some of the tip, ऐसा होता है usually it happens all of you that when you go to the shop and you purchase a RAM, है ना, तो मोस्ट ऑफ द यूजर क्या चेक करते हैं, वो ये टाइप वगैरह कोई नहीं चेक करते, वो सिर्फ कैपेसिटी देखते हैं, राइट। ये तो Yes, पहले sir. भी हम लोग करते थे, है ना, कैपेसिटी खाली देख लेते हैं कि हाँ कितना कैपेसिटी मिल रहा है, 8 GB मिल रहा है और 16 GB मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे अच्छा 16 GB वाला अच्छा है, इसी के साथ जाना चाहिए, है ना। Sir. बट इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे अलग कहानी है ना। तो इसके पीछे लाइक वी हैव टू चेक द फोन टाइप ऑफ द खरीदने रैम। के लिए आप ऐसे नहीं करते। हाँ, फोन में भी हम लोग ये चीज नहीं चेक करते हैं कि कौन सा टाइप का रैम मिल रहा है। हायर हायर कैपेसिटी वाला मिल रहा है तो फिर वो बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में वैसा होता नहीं है ना। Sir. भले कैपेसिटी आपका 16 GB का क्यों ना हो, बट यहाँ पे स्पीड अगर स्लो मिलेगा रैम, तो फिर वो अच्छा नहीं है ना। लेट्स से कि अभी के टाइम पे अगर किसी को भी कोई कंपनी को आपको फ्रॉड करना है किसी भी एक यूजर को, तो वो क्या करेगी, 16 GB का एक DDR3 रैम आपको प्रोवाइड कर देगी, DDR3। तो आपको क्या लगेगा कि 16 GB का रैम है, बहुत ही अच्छा रैम है, बट एक्चुअल में क्या है, DDR3, और DDR3 बहुत ही स्लो रैम Exactly. होता है ना। तो ये तो कोई चेक नहीं करता है ना कि DDR3 है कि DDR4 है एक्चुअल, तो यहीं पे फिर यहाँ पे स्कैम हो जाता है ना, Yes, sir. ये चीज। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ यू दैट द स्पीड ऑफ द रैम एंड द टाइप ऑफ द रैम इज मैटर्स वेरी मच, ये हमेशा चेक करना पड़ता है, ठीक है। वही चीज है। अब यहाँ पे अगर 8 GB 16 GB का कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटी भी मैटर करता है, बट उसमें ज्यादा मैटर करता है ये आपका टाइप, कौन सा टाइप का रैम है। क्योंकि प्रोसेसर अगर फास्ट है और रैम स्लो है तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर वही परफॉर्मेंस, मतलब उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आपके डिवाइस में एक HX सीरीज का प्रोसेसर है और रैम लगा हुआ है DDR3, तो फिर वही बात हो गया कि परफॉर्मेंस मतलब नहीं मिल पाएगा, ठीक है। दोनों को अच्छा होना पड़ेगा ना, प्रोसेसर भी अगर पावरफुल है तो रैम भी उस हिसाब से होना चाहिए, ओके। what I'm saying all of you that if suppose you have a high end processor and you have a very low end RAM, so you cannot expect that much of performance, you cannot do gaming and all this kind of task efficiently, ठीक है। so both the things matters, RAM and type of जो processor and RAM, okay, very 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 important, ठीक है। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखा, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द स्पीड एंड द टाइप, फिर कैपेसिटी। देखिए कैपेसिटी भी मैटर करता है, ऐसा नहीं कि नहीं मैटर करता है, इट मैटर्स, है ना। बिकॉज एज मच कैपेसिटी यू हैव ना, दैट मच बेटर मल्टीटास्किंग यू कैन डू। उतना मल्टीटास्किंग कर सकते हो, उतना लैग नहीं करेगा लैपटॉप, है ना। अगर जितना कम रैम होता है, लेट्स से यू हैव नोटिस्ड ऑल ऑफ यू, सपोज यू हैव अ 4 GB रैम लैपटॉप, 4 GB रैम है एक लैपटॉप में, है ना। तो वो वाले लैपटॉप में आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कीजिए या क्लोज कीजिए या फिर 3 4 एप्लीकेशन एक साथ रन कीजिएगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा, लैग होगा थोड़ा सा, है ना। Yes, sir. सो प्रॉब्लम आता है। तो कैपेसिटी भी मैटर करता है, जितना ज्यादा कैपेसिटी होगा उतना बेहतर मल्टीटास्किंग होता है, ओके। एज मच हायर कैपेसिटी यू हैव, दैट मच बेटर मल्टीटास्किंग यू कैन डू, तो दैट्स कैपेसिटी आल्सो मैटर, ठीक है। अभी के टाइम पे मिनिमम कैपेसिटी कितना मिल रहा है मेरे, एट दिस टाइम, लाइक हाउ मच मिनिमम कैपेसिटी यू कैन गेट इन अ रैम, स्पेशली लैपटॉप्स। कम से कम कितना ग्राम मिल जाएगा भाई, अगर एक लैपटॉप परचेस करने जाएंगे तो, नॉर्मल वाला भी लैपटॉप परचेस करते हैं तो। सर प्राइस पूछ रहा है क्या? सॉरी, प्राइस बोल रहा है क्या सर? नहीं नहीं, मिनिमम प्राइस अभी नहीं, 8 GB रैम, 8 GB रैम सर मिनिमम। कैपेसिटी, सर हाँ कैपेसिटी, नहीं नहीं, हाँ अभी 4 GB रैम मिल जाएगा ना? 4 GB नहीं, 4 GB जो हो ना 4 GB. पहले आता था, 4 GB वाला रैम पहले यूज होता था, अभी के टाइम पे कम से कम 8 GB वाला इजिली मिल जाएगा, 8 GB। अभी जितने भी लैपटॉप आते हैं ना, आप जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सर्च करके देखिएगा ना, चाहे वो 30,000 का लैपटॉप है या जितना भी, मतलब कम से कम जितना भी लैपटॉप पे जाइएगा ना, तो 8 GB का रैम आराम से मिल जाएगा। अभी तो क्रोम बुक भी वगैरह भी है ना, तो उसमें भी 8 GB का रैम मिल जा रहा है। अभी तो मोबाइल फोन में आपको 8 GB का रैम मिल सर जाएगा ना। सर मेरा एक क्वेश्चन, आप इतना बार क्रोमबुक बोल रहे हो, पर सर क्रोमबुक को लैपटॉप में तो काउंट नहीं कर सकते ना सर, वो एक सॉरी, पीसी तो नहीं है सर। क्रोमबुक जो है सर, वो एक, उसको तो पीसी में काउंट नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि उसमें जैसे भी चलता है सर, आई आई थिंक हाँ वो हाँ तो हाँ, एक, क्रोम क्योंकि बुक में सर आपको, आप
हाँ, वो लैपटॉप या पीसी में काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर विंडोज नहीं रहता है, वो आपका क्रोम ओएस रहता है, मतलब नॉर्मल के लिए होता है। वही ठीक ना, है। तो आप मतलब बोल हाँ, रहे तो। नहीं, मैंने बस आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया, क्योंकि क्रोम बुक जो रहता है वो बहुत ही चीप रहता है ना, मतलब बहुत ही लाइक मतलब 50,000, 15,000, 10,000 ऐसे मिल जाता है क्रोम बुक, तो मैंने बस एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया। लैपटॉप पीसी में काउंट नहीं होता है, बट फिर भी एग्जाम्पल के लिए, कि मैंने आपको बस एक आइडिया देने के लिए कि कितना मतलब सस्ता रेट में भी आपको कौन सा कैपेसिटी मिल जाएगा, वो मैंने आपको समझाया। ठीक है। हाँ, होता तो लैपटॉप ही है, लैपटॉप की तरह इसको बोलेंगे तो लैपटॉप ही ना, बट एक्चुअल में विंडोज नहीं रहता इसमें, तो वो सारा प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना। वी कैन नॉट यूज इट लाइक अ प्रोफेशनल वो, नॉर्मल मतलब जैसे फोन यूज करते हैं वैसे ही इसको ब्राउजिंग वगैरह करना, स्टडी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, या दैट इज थिंग, है ना। हाँ, तो दैट इज द थिंग, 8 GB अभी मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, 8 GB इज मिनिमम, मिनिमम इन द लैपटॉप, लैपटॉप और पीसी, क्योंकि 8 GB तो अभी फोन में आने लगा है, राइट। 8 GB, है ना। So in the laptop, right, in like as of now today, like 8 GB you can get as minimum. Higher तो मतलब कितना भी जा सकता है, 16 और 32 GB और 64 GB। 64 GB रैम वाला जो डिवाइस है अभी के टाइम पे रेयर है थोड़ा, है ना। आप लोगों ने ऐसा बहुत ही कम लैपटॉप देखा होगा जिसमें 64 GB का रैम आता है ना। तो ऑलमोस्ट मतलब 64 GB का रैम मतलब कहाँ पे आ सकते हैं, जैसे कोई थोड़ा लेट्स से 3 लाख का एक लैपटॉप मैंने देखा था, 3 लाख या 4 लाख का, वहां पे था 64 GB का रैम। ये पीसी वगैरह में हो सकता है 64 GB का, बट ये थोड़ा रेयर है अभी के टाइम पे। 16 GB, 32 GB अभी के टाइम पे कॉमन चल रहा है। 16 GB और 32 GB अभी के टाइम पे कॉमन है। ओके, 16 GB एंड 32 GB इज एज ऑफ, इट इज कॉमन एज ऑफ नाउ। 8 GB थोड़ा सा अभी लेस रैम हो चुका है, थोड़ा सा कम कंसिडर किया जा रहा है। तो अभी के टाइम पे अगर कोई भी लैपटॉप वगैरह परचेज करते हैं ना, तो ट्राई कीजिएगा 16 GB से ऊपर ही जाने का। ठीक है, 8 GB अभी थोड़ा कम हो। पहले के टाइम पे तो 4 GB वाला लैपटॉप भी आता था, पहले के टाइम पे 4 GB, 8 GB, पहले के टाइम पे 8 GB को अच्छा मतलब कैपेसिटी कंसिडर किया जाता था, बट अभी ये चेंज हो चुका है, अभी 16 GB, 32 GB। ओके, दैट इज। देखिए, अभी यहाँ पे आते हैं एसएसडी के ऊपर, ये हो गया रैम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्लियर है ना एवरीवन, ऑल द टाइप ऑफ रैम एंड द स्पीड एंड द कैपेसिटी, क्लियर एवरीवन, क्लियर। ओके, नाउ कमिंग टू एसएसडी। ठीक है, देखिए, एसएसडी पे आते हैं, यहाँ पे भी कुछ टर्म्स है इन द एसएसडी आल्सो, वी हैव सेवरल टर्म्स। अच्छा, लेट मी get RAM here. Random access memory, read only. ठीक है। सी, नाउ कमिंग टू एसएसडी। ठीक, एसएसडी का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कितने टाइप का एसएसडी आता है यहाँ पे बताइए तो एवरीवन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसएसडीज आर यूज्ड। देखिए, एचडीडी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एचडीडी, बिकॉज एचडीडीज आर नॉट यूज्ड, आज के टाइम पे यूज नहीं होता है ना, वी डोंट यूज इट। क्यों यूज नहीं होता है, बिकॉज दीज आर वेरी स्लो। इस एचडीडी कुछ इस तरह का दिखता है, लाइक दिस इज हाउ योर एचडीडी लुक्स, है ना। ये एच डी डी है, दिस इज एच डी डी, है ना। तो यहाँ पे एक फिजिकल डिस्क होता है, दिस इज डिस्क एंड इट स्पिन्स, ये घूमता है, डिस्क घूमता है। ओके, एंड ये जो ये पिन रहता है ना, यहाँ पे एक पिन रहता है, वो जो डिस्क के अंदर डेटा स्टोर्ड है वो उसको रीड करता है। सो दिस मूवेबल कंपोनेंट है ना, ये डिस एच डी डी के अंदर क्या है कि कंपोनेंट्स मूव करते हैं। ओके, ऑल द मूवेबल कंपोनेंट्स आर देयर इन द एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव। वी डोंट यूज इट नाउ डेज। ठीक है, सो वी यूज एस एस डीज। ओके, इंस्टेड ऑफ एच डी डी वी यूज एस एस डीज। So that's what I'm asking. Like, tell me all of you, like, how many types of SSDs are there in the market as of now? Types of SSD. कौन कौन सा टाइप का एसएसडी यूज होता है लैपटॉप या पीसी में, बताइए। हम्म, लगता है। साटा एसएसडी, ठीक है, एक तो साटा हो NVMe XR. गया, एनवीएमई, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, एनवीएमई, एग्जैक्टली, दो टाइप का ही एसएसडी यहाँ पे यूज होता है। ओके, मोस्टली वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसएसडी। इसमें इन दोनों में से भी ज्यादा कौन सा यूज होता है, एनवीएमई। ओके, एनवीएमई इज द मोस्टली यूज्ड, हाईली, मतलब सबसे ज्यादा यूज यही होता है। ओके, SATA SSDs are not used that much today बिकॉज दे आर स्लो। ठीक है, थोड़ा स्लो होता है, एचडीडी से तो फास्ट ही है, बट फिर भी स्लो है थोड़ा। ठीक है, सर एनवीएमई साठ एसएसडी। एसएसडी वही हो गया ना सर, जैसे हार्ड डिस्क का मतलब रहता है वैसे ही साठ एसएसडी रहता है, और एन हाँ, एनवीएमई एसएसडी हाँ, जो रहता है वो सर एक चिप के टाइप में आता है जो लंबा चिप रहता है। रहता है। हाँ, ये चिप रहता है थोड़ा, जैसे क्योंकि रैम सर का अभी स्टिक जस्ट दिखता है मैंने ना। हाँ, लगाया था इसलिए मुझे पता है। हाँ हाँ, हाँ, ये जो दिखता है ना एनवीएमई से, जैसे रैम का स्टिक है वैसे ही दिखता है, थोड़ा चिप हाँ पतला हाँ, सा रहता है, पता लंबा सा सा रहता स्टिक है। रहता है।
बट सर SATA इसका SSD भी में NVMe SSD का भी एक स्लॉट रहता है हमारे पीसी में, और हाँ SATA SSD का HDD या फिर अगर CD ड्राइव का काम है तो उसी को पुल करके लगता है। हाँ वही चीज है ना वही। तो SATA SSD अभी उतना यूज नहीं होता ना, वी डोंट यूज इट। NVMe ज्यादा यूज हो रहा है क्योंकि इसका स्पीड अच्छा होता है। ओके। बफर बट तो स्पेस कितना लेता है? सॉरी, हाँ हाँ। स्पेस स्पेस सर। हाँ स्पेस भी ठीक रहता है, स्पेस तो वैसे इसमें भी ठीक रहता है। 128 GB का मतलब SATA नहीं SSD सर, आता है स्पेस नॉर्मल। इन एज इन सर कि वो जो मतलब जैसे ये जो NVMe है वो सर लंबा होता है और थोड़ा पतला होता है, बट ओके हाँ SATA SSD वैसे, जो है वो तो। हाँ फॉर्म फैक्टर ना, फॉर्म फैक्टर या इसका हाँ फॉर्म फैक्टर थोड़ा पतला रहता है, दैट इज, है ना या। So, ठीक है, and SATA SSD we don't use it as of now, like NVMe SSD we use. So in the NVMe also we have several types, several concepts, है ना। देखिए NVMe में क्या आता है, यहाँ पे जनरेशन को कॉन्सेप्ट है SSD के अंदर भी। In the SSD also we have the concept of generation, ठीक है। In the NVMe, see what are the generations on the type C. So you can see SATA SSD they are having the typical speed of 400 to 500 MB per second of speed. ये क्या है, read and write speed. This is your read and write speed. Okay, read and write speed. Like means how fast your data can be read in the SSD or how fast your data can be stored in the SSD. Okay, this is your speed. So SATA SSDs they are having the typical speed of 400 to 550 MB per second. But you see the NVMe SSDs, NVMe SSDs are way better, है ना, इनमें बहुत ज्यादा फास्ट है ना। यू कैन सी NVMe SSD इसमें जो सबसे लोअर वेरिएंट का भी जो आता है ना NVMe SSD जनरेशन 3 वाला, उसका जो स्पीड है 1500 से 3500 MB पर सेकंड ऑफ स्पीड है ना। द लोएस्ट, हाँ लोएस्ट NVMe SSD जनरेशन 3 SSDs they are having the speed of minimum 1500 MB per second, which is way better than the SATA SSD। SATA SSD से बहुत अच्छा है ना, दैट्स व्हाई। सो NVMe SSD में यहाँ पे जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट जनरेशंस, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द जनरेशन ऑफ यू सी। अगर ऐसा कुछ लिखा ना, सपोज इफ इट इज रिटन लाइक NVMe PCIe 3, सो ये 3 का मतलब होता है दिस इज जनरेशन 3, जनरेशन 3। इफ इट इज 4, अगर यहाँ पे 4 है, दिस इज 4, दैट मीन्स इट इज जनरेशन, Yes, of course. हाँ जनरेशन 4 है ना। यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स इट इज जनरेशन 5, like this। So you, in this manner you guys can identify like which generation it is, है ना, कौन सा generation है। तो you can see Gen 3 NVMe SSD it is having this much of speed, Gen 4 NVMe SSD it is having 5000 to 7400 MB per second और Gen 5 SSD का सबसे ज्यादा होता है। Gen 5 SSDs they are having the highest speed 10,000 MB per second of read and write speed। मतलब Gen 5 SSD जो होता है ना, इसमें डेटा रीड एंड राइटिंग बहुत ही फास्ट होता है, डेटा स्टोर भी बहुत फास्ट होगा, डेटा रीड भी बहुत ज्यादा फास्ट होगा, है ना। तो इसका Yes. एग्जाम्पल एग्जैक्टली आपको एग्जाम्पल कहाँ पे दिखेगा, सी लेट्स से कि आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया। ओके, यू डाउनलोडेड एन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन जब डाउनलोड हो रहा है तो वो तो स्पीड डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड पे, है ना। व्हेन यू आर डाउनलोडिंग एन एप्लीकेशन एंड द डाउनलोड स्पीड डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड, राइट। Yes, yes, sir. बट हाँ, बट व्हेन दैट एप्लीकेशन इज गेटिंग इंस्टॉल्ड, जब इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग, सो जो NVMe SSD होता है, जो जनरेशन 5 वाला SSD है, इन द NVMe SSD जनरेशन 5, यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। Yes, sir, yes, sir. सबसे पहले क्योंकि इसका जो रीड स्पीड होता है बहुत ज्यादा फास्ट है, रीड स्पीड इज वेरी फास्ट, राइट। सो हियर यहाँ पे जो एप्लीकेशन होगा ना सबसे पहले इंस्टॉल होगा, उसके बाद कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे लगेगा, NVMe जनरेशन 3 SSD में टाइम लगेगा। तो वो डिपेंड करता है कितना जल्दी आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं, कितना जल्दी फाइल को वहां से रीड कर सकते हैं, वो होता है रीड एंड राइट स्पीड। और सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है Gen 5 SSD में। तो ऑब्वियसली Gen 5 SSD थोड़ा कॉस्टली है ना, थोड़ा महंगा है, राइट। Gen Yes, 5 SSD, हाँ these are costly because they provide very good speed। Gen 3 SSDs are cheap, like little affordable you can say, है ना, that is the thing। okay, so 3 तरह का SSD यूज होता है, आप लोग चेक कर सकते हैं, बाय द स्पीड ओनली यू कैन चेक इट, लाइक है ना, what type of SSD is there in your device। हाँ, and see why I'm saying like the speed matters। अगर आपको if you say like what are the technical specification, check an SSD technical specification of SSD, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे। पहला तो स्पीड ही हो जाएगा, है ना, रीड एंड राइट स्पीड, रीड एंड राइट स्पीड, बिकॉज इट मैटर्स, राइट। देन टाइप ऑफ SSD, जनरेशन ऑफ SSD, ओके, जनरेशन ऑफ SSD, जनरेशन और टाइप यू कैन से बोथ, है ना, लाइक yes, देन थर्ड कैपेसिटी, थर्ड में कैपेसिटी,
तो सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, वो स्पीड मैटर करता है, फिर जनरेशन मैटर करता है, फिर यहाँ पे कैपेसिटी भी मैटर करता है। ठीक है, कैपेसिटी को मैंने लास्ट में क्यों लिखा है, इसका रीजन है। रीजन क्यों है, देखिए मान लेते हैं कि दो एस एस टी यहाँ पे फिर लेते हैं। लेट अस टेक टू एस एस टीज, वन इज योर 256 GB NVMe, let me write it as a NVMe PCIe 3 256, let's say 512 GB। तो ये एक एसएसडी है। ठीक है, एंड सेकंड ऑप्शन क्या है, लेट्स से यू हैव वन मोर ऑप्शन एज NVMe PCIe let's say PCIe 4 and it is of 256 GB। ठीक है, तो अब यहाँ पे ज्यादा कैपेसिटी कहाँ पे मिल रहा है एवरीवन, यहाँ पे ज्यादा कैपेसिटी मिल रहा है, 512 GB मिल रहा है, राइट। वी आर गेटिंग मोर कैपेसिटी है 512 GB, वी आर गेटिंग लेस कैपेसिटी, बट फिर भी दोनों में से बेहतर कौन है, लाइक वेयर यू कैन गेट बेटर परफॉर्मेंस, जनरेशन कौन सा 4। जनरेशन 4। 4 में। ठीक है, सेकंड वन है ना, हियर वी कैन गेट बेटर परफॉर्मेंस, व्हाई ऑल ऑफ यू, बिकॉज इट इज जनरेशन 4, 4 मींस इट इज जनरेशन 4 एसएसडी एंड इट इज हैविंग बेटर स्पीड। तो यहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा है। ओके, सो दिस वन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, मोर परफॉर्मेंस इन दिस एसएसडी, मोर परफॉर्मेंस, इसीलिए मैंने यहाँ पे सर एक कैपेसिटी। क्वेश्चन है सर। हाँ सर बताइए। अगर मान लीजिए सपोज कि आ, जैसे कि ये फोर्थ जनरेशन में 256 है, बट थर्ड जनरेशन में ये 1 TB है, तो सर मोर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कौन देगा? फिर भी यही प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे आपका 1 TB भी है ना, या 1 TB, ऐसा कह रहे हैं ना, वन, लेट्स से कि इसको इरेज वन करते हैं, टीबी यहाँ पे 1 TB है, फिर भी परफॉर्मेंस कहाँ पे होगा, यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट तो कैपेसिटी, इतना इतना अच्छा है सर। हाँ इतना अच्छा है, कैपेसिटी मैटर ही नहीं करता ना, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से, वो कैपेसिटी अच्छा मतलब अच्छा। बस स्टोरेज है। ठीक है, वो स्टोरेज है, कितना ओके स्टोरेज है। ओके हाँ। ठीक है, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि आपके पास दो गोडाउन है, एक गोडाउन पूरा फुल्ली फर्निश्ड है ना, एसी वगैरह लगा हुआ है एक गोडाउन में, बट वो छोटा सा है, 1 BHK का है। और एक दूसरा गोडाउन है पूरा, मतलब बहुत ही बड़ा स्क्वायर फीट, मतलब उसका एरिया बहुत है, बट वो उतना फुल फर्निश्ड नहीं है, कैपेसिटी ज्यादा है बट वो उतना अच्छा नहीं है। तो वैसा ही है रहा, वही चीज यहाँ पे हो रहा है, भले यहाँ पे कैपेसिटी ज्यादा है, बट फिर भी स्पीड कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा मिलेगा, भले यहाँ पे कैपेसिटी कम है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि आपका टाइप जो होता है, एसएसडी का टाइप सबसे ज्यादा मैटर करता है, कैपेसिटी से भी ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, हाँ बट कैपेसिटी मैटर करता है, अगर आपको बहुत सारा डेटा फाइल्स स्टोर करना है तो कैपेसिटी भी मैटर करता है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, फास्ट है ना, कौन सा फास्ट रहेगा, विच वन इज द फास्ट एसएसडी, फास्ट कौन है इसमें से, तो फास्टेस्ट में ये वाला आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला। ठीक है, क्लियर नाउ। यस। हाँ, ठीक है, सो दैट इज द थिंग है ना। अगर यहाँ पे भी अगर आपका, लेट से कि यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको Gen 4 कर देते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए कि यहाँ पे इसको हटाते हैं अभी। तो यहाँ पे ये PCI 3 था, इसको मैंने कर दिया PCI 4, अब कौन सा बेहतर है बताइए, फर्स्ट विच वन वन। इज बेटर, फर्स्ट वन, राइट। बिकॉज यहाँ पे ज्यादा स्पीड भी मिलेगा, ज्यादा कैपेसिटी भी मिलेगा, दोनों का स्पीड सेम ही होगा। ठीक है, दोनों एसएसडी का स्पीड क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे सेम जब स्पीड है तो कैपेसिटी ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा बेहतर ये है फिर, राइट है ना। सो इसमें दैट तो इज, सबसे अच्छा मिल रहा है। हाँ है ना, कैपेसिटी अलग अलग है बट स्पीड सेम है, टाइप क्योंकि एसएसडी का टाइप सेम है। यस। ठीक है, हाँ, सो ये होता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इन द प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, कैसे क्या क्या चीज है पहले चेक करना है, दैट इज। ठीक है, ऑलराइट, ओके देन, सो दिस CPU, RAM and SSD, it is clear I think also। ठीक है, RAM and SSD we have discussed। ऑलराइट, ठीक है, सो आप लोग now you can take the screenshots। okay, you guys can take it, wait। So from here we have discussed today, no, all of you, yeah, from here memory। आई थिंक कल जो था CPU वाला सभी ने ले लिया था ना स्क्रीनशॉट, ऑल ऑफ यू हैव टेकन नो द CPU and the यस। types of यस। CPU screenshot, done now। Yes, sir. Okay, Okay. okay, take it then from memory, so take it from here, I think, yeah, take this much। इन सब।
Done. Okay. Then take this. Take it from here. Type of RAM. So wait, sir. Okay. 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 Wait a second. Yeah. Take it. Yeah, done, sir. Done. Okay. And then take this. टाइप ऑफ RAM. ये यहाँ से आई थिंक ये SSD का तो आई थिंक इतना विजिबल है क्या? इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. Done, sir. Yeah, is it audible everyone? Yes, sir. Okay, see, what I'm saying, just don't leave the session. बिकॉज कुछ स्टूडेंट का कैजुअल बिहेवियर की वजह से क्या हुआ है कि लाइक मिस एडमिन टीम ने एक गाइडलाइन इशू किया है, ठीक है? सो आपको ये सारा गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। आई थिंक आपको मैसेज आया होगा, लाइक यू हैव गॉट द मैसेज ऑल ऑफ यू। नहीं सर, नहीं आया? ओके। ओके, लेट मी शो यू देन, वेट। दिखाई दिखाई सर। सी, कैन सी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. गाइडलाइंस दिख रहा है यहाँ पे, सी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। ओके, सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट यू हैव टू फॉलो, ये सारा आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना? बिकॉज इट इज लाइक फ्रॉम नाउ इट इज वेरी स्ट्रिक्ट, है ना? बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स इट हैज बीन फाउंड like some of the students they don't join the classes regularly, है ना? They just violate the guidelines or they just like once they do not respond to the admin team on time, है ना? तो इग्नोरेंस वगैरह जो रहता है ना, ये अभी के टाइम पे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, अभी नहीं चलेगा ऐसा, ठीक है? सो यू कैन सी लाइक कुछ कुछ गाइडलाइंस है, लाइक अटेंडेंस मैंडेटरी है ना? यू कैन नॉट लीव अ सेशन और यू कैन नॉट स्किप अ सेशन विदाउट एनी काइंड ऑफ नोटिस, है ना? लाइक होता है ना, कभी कभी सेशन ज्वाइन नहीं करते हैं सम ऑफ द पीपल, लाइक सो नाउ इट इज नॉट अलाउड, ठीक है? आपको पहले नोटिस भेजना पड़ेगा, बताना पड़ेगा रीजन, ठीक है? फिर वहां पे Yes, sir. आप हाँ, फिर आप कोई सेशन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इट इज जॉब इंटर्नशिप, नो ऑल ऑफ यू नीड वी नीड टू एंश्योर दैट यू guys have completed all the modules, you know all the things, right? Because it is the up to interview, इंटरव्यू कब आता है ना यहाँ पे, तो कोई Yes, sir. सेक्शन मिस करेंगे तो आप टॉपिक मिस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा इंटरव्यू में, फिर इंटरव्यू में प्रॉब्लम आएगा तो दैट इज लाइक व्हाट, फिर रिवीजन पे लाइक ये होगा ना, सो दैट इज, सो अटेंडेंस मैंडेटरी है ना? कोई भी एब्सेंस नहीं चलेगा विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी लाइक जनरल अच्छे रीजन के, लाइक कोई रीजन का बिना अटेंड लाइक बस एब्सेंट नहीं करना है, ठीक है? बी कैमरा रेडी, ठीक है? हाँ, वेन मिथलेश को एवर। इशू हो रहा है क्या सर? सॉरी? सर क्योंकि मिथलेश ज्वाइन नहीं है सर, हमारे ग्रुप में ऐसा होता था इसीलिए क्या है सर। हाँ हाँ, सम ऑफ द सम कुछ कुछ स्टूडेंट क्या है कि मतलब लाइक सीरियसली अटेंड करते हैं सेशन, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक थोड़ा कैजुअल रहते हैं इस मामले में, है ना? तो उनके लिए गाइडलाइंस है, जो रेगुलर अपडेट कर रहे हैं, मतलब रेगुलर अटेंड कर रहे हैं डिसिप्लिन के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स है इसीलिए यहाँ पे गाइडलाइन नोटिस जनरल मतलब इशू किया गया है, ठीक है? सो दैट इज, सो ये आप लोग रीड कीजिए, ठीक है? कैमरा रेडी, लाइक दिस व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट टू ओपन द कैमरा, आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा कैमरा, ठीक है? कैमरा ओपन करना है जब भी आपको पूछा जाए तो, ओके? मेंटेन कॉन्फिडेंस एंड क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है? हाँ, और सेशन वगैरह टाइम पे ज्वाइन कीजिए, राइट? सम ऑफ द पीपल दे ज्वाइन आफ्टर 1 आवर, कि सेशन कंप्लीट हो चुका है, 1 आवर हो भी चुका है, फिर ज्वाइन कर रहे हैं, है ना? तो उसमें प्रॉब्लम है ना, लाइक फिर आपको पहले वाला टॉपिक नहीं समझ आएगा, यू विल बी आस्किंग टू गिव द स्क्रीनशॉट, यू विल आस्क टू रिवाइज इट, सो इसमें दूसरे स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं ना, इसी वजह से जस्ट ट्राई कीजिए ज्वाइन करने का टाइम पे, ओके? एक्टिविटी एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द मॉक इंटरव्यूज या डिस्कशन टाइप का कुछ भी मीटिंग वगैरह होता है तो उसको स्किप नहीं करना है, ओके? आपको लिंक आएगा मॉक इंटरव्यू का, या फिर कोई भी सेशन का लिंक आता है किसी भी तरह का, लाइक व्हाट अलग से कोई सेशन हो रहा है, तो हमेशा ज्वाइन करना है, ठीक है? लीव नहीं करना है, अटेंडेंस मैंडेटरी रहता है इस इन सारे सेशन, ठीक है? कंप्लीट ऑल सेशन में असाइनमेंट्स। कैसे लगेगा? सॉरी? Yes.
सर जैसा आपने कहा ना कि मॉक इंटरव्यूज होंगे, तो इस सेशन का हमें पता कैसे लगेगा? वो आपको मैसेज आएगा ना, एडमिन टीम आपको व्हाट्सएप में इन्फॉर्म कर देंगे जब भी होगा तो, ओके ठीक सर। है। हाँ, तो आपको चेक करते रहना, एक्टिव एक्टिव रहना है, ठीक है। हाँ, देन कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट्स, जो भी आपको ट्रेनर्स जो टास्क देते हैं, लाइक है ना, टास्क वगैरह दे रहे हैं, वो सारा कंप्लीट करना है। आई थिंक आपका तो हो ही चुका है ना, आपका ये लास्ट चल रहा होगा टेक्निकल इंटरव्यू। हाँ, तो आप लोग का तो हो गया, बट जिनका मतलब स्टार्टिंग का कुछ मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गया, उनके लिए भी ये गाइडेंस है, मतलब ईवीजन में जितने स्टूडेंट्स सबके लिए, दैट इज व्हाट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, ठीक है। मेंटेन प्रोफेशनल बिहेवियर एट ऑल टाइम्स, ठीक है। प्रैक्टिस रेगुलरली एंड रिवाइज की कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसको डेली रिवाइज करना है। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, क्वाइट इन्वायरमेंट। तो बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज वगैरह आएगा एंड यू विल जस्ट से समथिंग, नो, फिर अदर पीपल विल डिस्टर्ब, नो, थोड़ा बैकग्राउंड आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठिए जहाँ पे थोड़ा सा साइलेंस रहे, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। एंड ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है, क्योंकि अगर ये सारा गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कीजिएगा तो यू कैन सी लाइक इट इज रिटन है। तो इफ यू नॉट फॉलो द गाइडलाइन, तो पहले आपको वर्बल वार्निंग मिलेगा, ठीक है। देन सेकंड टाइम पे रिटन वार्निंग मिलेगा, थर्ड टाइम पे आपका फिर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, प्रोग्राम डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, सस्पेंड हो जाएंगे। सो दैट इज थिंग, ठीक है। तो ये इसको सीरियसली फॉलो करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। नहीं ठीक है सर, हो गया। क्या सर, गलत ही नहीं करना और क्या किसी को भी। गलत नहीं करना, एग्जैक्टली गलत नहीं करना है, सेशन को एक्टिवली अटेंड करना है, डिसिप्लिन में रहना है, वही चीजें हैं, है ना। यस बस सर। हाँ, हाँ, ठीक है। सर बस वीडियो ऑन नहीं करवाइएगा। वीडियो ऑन ये हम लोग करेंगे मे बी लास्ट में, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स, देन। ओके सर। मॉक सर इंटरव्यू में। हाँ, बट एनी टाइम आई कैन आस्क, ठीक है, लाइक दिस इज एज ऑफ नाउ बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे जस्ट, ऐसा देखा गया है कि दे आर लाइक मस्ट सिटिंग एंड दे आर जस्ट सेशन ज्वाइन कर देते हैं, फिर वो मतलब कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं है, यस। राइट। तो फिर वीडियो ऑन करने बोला जाएगा तो रहे आपको ऑन हम करना है, बस। हाँ, एट द सेम टाइम, ठीक है। होता है बहुत जरा, लाइक मींस आई एम ओनली आस्किंग सम ऑफ द स्टूडेंट, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि स्टूडेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। So they are just joining the meeting and they are just like God knows where रहते they हैं। are. हाँ, तो that is thing, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, that is I will ask any one of you to switch on the camera, so at that time within 5 minutes only you have to switch on your camera, ठीक है। ये चीज, सर हम लोग या से भी क्या सर, हम लोग तो रिस्पॉन्ड करते हैं फिर भी। नहीं, हाँ, जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मुझे पता है ना, कौन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कौन नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ तब ठीक है सर, हाँ, तब तो हाँ, इसमें सही है। कैमरे ओपन कर लूँ क्या? पहले तो देख लेंगे। हाँ, सर हाँ, इसका ठीक है। कराइए जरूर सर, मिथिलेश का देखना है थोड़ा सा। हम्म, ठीक है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, ठीक है। सो ऑल राइट, देन विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है विमान, सो या बाय ऑल अच्छा ऑफ यू। सर अच्छा हाँ, बताइए। नहीं 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 सर, वो जब पढ़ाएंगे तब वो बता देंगे। कुछ नहीं ओके, सर, क्वेश्चन है बस वही है कि भूल ना जाए हम, क्वेश्चन ही मेरा। तो बता दीजिए क्या क्वेश्चन है। सर सीसीएनए रिलेटेड है, क्योंकि आपने ही सीसीएनए पढ़ाया था ना, और हम हम्म, जब रिवीजन कर रहे थे ना तो वो एक प्रॉब्लम आया था उसमें, कल भी हम आपको और बताए थे कि सर कल आपने क्वेश्चन बताया मतलब था सर क्या मुझे? बहुत माइनर सा है सर। नहीं माइनस? सर बताया नहीं है, कल भी हम यही बोले। नहीं नहीं अब क्या माइनर सा प्रॉब्लम? क्वेश्चन है अच्छा, अच्छा, सर। सर एक सबनेटिंग वाला क्वेश्चन है सर। सबनेटिंग का है, ओके। सबनेटिंग का है तो एक काम कीजिए, देन आप जो भी क्वेश्चन वगैरह है उसको रेडी करके रखिएगा, हम कल आप स्टार्टिंग में मुझे शो कीजिएगा, विल डिस्कस इट, ओके। ठीक है ठीक है, सर। हाँ, ओके, ठीक सर, ओके थैंक यू। all right then, okay, so thank you all of you, thank you, bye, see you tomorrow then, all of you, thank you. Thank थैंक you, यू sir. सर।